in a rapid fire marathon about the concepts of negotiable instrument, then the MCQ thereafter, right? But for written exam point of view, we are going to discuss what is necessary, and understanding negotiable instrument is a bare minimum task for every banker. So what will we read in this session? We will be discussing about what is NI Act, why this act came into effect, this purpose, how it defines the rules of negotiable instrument, and what are the three main instruments. These are the promissory notes, bill of exchange, and check. Respectively, section 4, 5, and 6 discusses about these three instruments. And widely used instrument is check. Bill of exchange is something used for credit management, mostly in the case of credit and in the cases of business. Okay. Then we will go and discuss about the major characteristics of negotiable instrument, like it should be in the writing, signed, unconditional, and transferable. This is the main characteristic of a negotiable instrument. Oral communication को हम negotiable instrument नहीं कहेंगे, because in many places oral communications like oral lease etc. is mandated. ठीक है, वहां पे वो चलता है. But in the case of negotiable instrument, it should be clear because it is used in law enforcement. So there are various parties to various instruments like drawer, drawee, payee, holder in due course. We are going to discuss it all. ठीक है. और हम ये देखेंगे कि स्पेशल प्रोविजंस क्या है. ये मेन चीज आपको देखना है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत वास्ट है, बट आपको ये मेजर 143 सेक्शंस हैं. तो प्लीज डोंट रेज हैंड, आई विल ओपन योर कमेंट्स. कमेंट अभी बंद है. एक बार हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मैं कमेंट ओपन करूंगा. जब इंटरेक्शन अलाउ करूंगा तब ओपन करेंगे. ठीक है. तो स्पेशल प्रोविजंस लाइक क्रॉसिंग इन चेक्स, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, एंडोर्समेंट्स, ब्लैंक एंडोर्समेंट, फुल एंडोर्समेंट, protection to paying and collecting bankers like in section 85, 89 and 131 always used. Section 138 for check bounces, designer of checks. Okay. Then the procedure मैंने पूरा highlight दे दिया आपको. Notice period within 30 days, 15 days is given for payment of that amount. Then section 143A, interim compensation. If somebody defaults, the case goes to court, so interim compensation is given. Section 20, inchoate instrument. Popularly बार बार एग्जाम में IBPS का inchoate instrument एक पॉपुलर क्वेश्चन बैंक है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में 3 बार पूछ चुका है. सेक्शन 31, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉई बैंक. ओके. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रस्ट डेफिसिट के लिए जरूरत पड़ता है. सी, आई एम ए वेरी गुड कस्टमर ऑफ योर्स. आपसे मैं रॉ मटेरियल लेता हूँ या फिर कुछ चीजें सामान में उधारी पे लेता हूँ. मैं आपका बहुत अच्छा वाला कस्टमर हूँ, but nobody knows what will happen in future. The future is always unforeseen. It cannot be seen from the present day. तो हो सकता है कि मेरे मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, मेरे लिए वो इमरजेंसी जरूरी हो, मैं आपका पैसा ना दूं. well, but you know me very well. मैं आपका दोस्त भी हूँ, जानता भी हूँ आपको, आप मुझे जानते हैं. But you think that there will be certain times when your payment will not be my priority. ठीक है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हुआ, मैं उसके लिए पैसा पहले खर्चा करूंगा या आपका पैसा पहले उधारी चुकाऊंगा. But if I don't pay you in time, it will have means butterfly effect. मतलब एक के बाद एक चीजें आएगा, आपका बिजनेस ठप हो सकता है. When you don't get money from me, you could not pay to your creditors. When you don't pay to your creditors, they may go for legal cases. When they go for legal issues, there will be interim order or injunction so that your business gets stopped. तो मेरा एक छोटा सा ना पेमेंट ना करने से आपका बिजनेस भी बंद हो सकता है. इसीलिए आप एक assurance चाहते हैं. Then what are the negotiable instruments? 3 things are on your screen. Section 4, Section 5, Section 6, promissory note, bill of exchange, check. मेरे घर में चोर आता है, ठीक है, मेरे गणपति के ऊपर बंदूक रखता है. One day a thief comes to my house and puts a gun on my forehead and says, write down, you don't have cash in home, no issues. I'm a banker, so banker come thief, so I know how to deal with such situations. So you just give me a check, an accounts pay check. I don't have an issue with that. Okay, I issue him a check and he goes to encash. बट मैं तो इतना बुद्धू भी नहीं हूँ, उसको चेक देके तो शांत नहीं बैठूंगा. मैं क्या करूंगा, उस चेक को उस अकाउंट में पैसा खाली कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा.
इवन इफ आई कुड नॉट स्टॉप द चेक, अगर इमीडिएटली स्टॉप भी नहीं किया होगा तो मैं उस अकाउंट का चेक उसको दे दूंगा जिस अकाउंट में मेरे पैसे नहीं है, ठीक है। मान लीजिए इन माई वन ऑफ माई अकाउंट्स लाइक इन आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट आई डोंट हैव मनी लेफ्ट, ठीक है। I will give him a checkbook because while I opened an account forcefully by some of you, किसी ने जबरदस्ती खोल दिया था, इतना मोटा चेकबुक दे दिया था, काम में नहीं आ रहा है, मैंने चोर को 1 करोड़ का चेक दे दिया and that check is bounced. You know, by section 138 I can be there could be a penalty of twice the amount, मतलब 1 करोड़ का चेक है तो 2 करोड़ का पेनल्टी लग सकता है, जेल भी हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या ये चोर मेरे ऊपर केस कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज नो रीजन फॉर कंसिडरेशन। यही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज देयर इज नो रीजन टू गिव हिम अ चेक in the past hand. I'm there is no reason, I don't do business with him. I have never taken money from him, so there is nothing for consideration. So in such cases I am safe. Bill of exchange is order to pay. Bill of exchange is order to pay. Three parties, drawer, drawee and pay. Drawer, drawee and pay. ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है कि भाई पेमेंट करना है आपको, इट्स माय ऑर्डर। बट प्रॉमिसरी नोट खाली प्रॉमिस है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हम उसमें आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। ओके, सो वंस फ्री प्लीज गो एंड चेक दिस पीडीएफ। पीडीएफ इज इन वेरी डिटेल, आप पूरा मैंने डायग्राम के साथ जितना हो सकता है लेमैन के टर्म में एग्जांपल देके समझाया है। होल्डर 3 तरह का होता है। होल्डर फॉर कंसिडरेशन, होल्डर इन ड्यू कोर्स। मींस होल्डर मतलब जिसके पास चेक है। I have the check with me right now. He should be a holder, entitled for possession and to claim the money. Holder for consideration means there should be a due consideration to give the money. पैसा देने के लिए कोई वजह होना चाहिए। मैन ऑफ द मैच है हुआ तो एसबीआई का 10 लाख का चेक मिलेगा। गिफ्ट है, सैलरी पेमेंट है, तब जाके चेक। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स he has received the check in good faith without any negligence. मतलब मैंने निखिल को देने के लिए वादा किया था और सही निखिल के पास चेक पहुंचा है, गुड फेथ में दिया है। एंड निखिल भी चेक लेते समय नेग्लिजेंस नहीं किया है। निखिल ऑल्सो चेक कि दिस सिग्नेचर बिलोंग्स टू मी, सो दैट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। A negotiable instrument dated 30th August 2021 is made payable 3 months after date. What will be the maturity date? You know, check has 3 months validity. 3 महीना validity है। The instrument is at maturity on the 3rd day after 30 days. मतलब 3 महीना कब होता है? 30th November, then 3 days grace period. Plus 3 days means is the grace period. ठीक है, हो सकता है कि आपके लास्ट डेट पर तबीयत खराब हो जाए, कुछ दिक्कत हो, बैंकिंग में छुट्टी हो जाए, आप बैंक में जा रहे थे, लॉन्च आवर चल रहा था, वापस आ गए, फिर उसके बाद जा ही नहीं पाए, तो 3 days आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ नवंबर। डिवीजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय नॉन पेमेंट इज कवर्ड अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? करेंसी नोट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यही क्वेश्चन बार बार आता है, करेंसी नोट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या है करेंसी नोट और ये कहां पे डिफाइन होता है? करेंसी नोट क्या है और ये कहां पे डिफाइन होता है? करेंसी नोट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ करेंसी एक्ट। करेंसी नोट प्रॉमिसरी नोट के फॉर्मेट में भी होता है, बट इसका वैलिडिटी पीरियड नहीं है। व्हाई इट इज नॉट ए करेंसी नोट is not a negotiable instrument? Because of 2 reasons. It is not defined under NI Act. ये NI Act में डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है, ये NI Act में डिफाइन नहीं हुआ है, ये सेक्शन 21 करेंसी एक्ट में डिफाइंड है। सेकेंड चीज है उसकी कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं होता है। जो प्रोमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो टाइम बाउंड होता है, 3 महीने का वैलिडिटी पीरियड रहता है, इसमें वैलिडिटी पीरियड नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे ना, जैसे एंटीडेटेड चेक मतलब बिफोर डेट, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन में अगर कुछ भी पूछे एंटीडेटेड चेक के बारे में, आप अपना एनालिटिकल स्किल लगा के उसको क्लियर कर सकते हो। बट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम वी फोकस ऑन एमसीक्यू, बट द थ्योरी इज very much important. If you have all theoretical knowledge, you can answer MCQs. But if you have only MCQ knowledge, then you can't answer in interviews, can't answer a question which comes with a full bounce, with a twisted arm.
आप उसको आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर भी मैं क्वेश्चन में, जब मैं क्वेश्चन देखिए आज जो एमसीक्यू है वो पूरा 360 डिग्री कवर करेगा। हम अगर डिस्कस करते जाएंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट भी इसके साथ क्लियर हो जाएगा। इसलिए नॉलेज बहुत जरूरत है, नॉलेज की बहुत जरूरत है, रियल लाइफ में भी, एग्जाम में भी, इंटरव्यू हॉल में भी, दुनियादारी में भी। क्योंकि आप जब बैंक जाओगे ना तो लोग पूछने आएंगे। जब मैं पहले पहले प्राइवेट बैंक ज्वाइन किया था, तो मैं जब गांव जाता था तो लोग 500 का नोट लेकर चले आते थे। तो इनको क्या बताएं कि मैं तभी तभी मैनेजर ज्वाइन किया था, पीओ, राइट। वो आईसीआईसी बैंक वाला वो जो सैम प्रोग्राम है, जो वो फेक स्कैम चलाते हैं, ये सब उसमें हम फंस गए थे तो चले गए थे। तब तो हमें उम्मीद था कि हम सीईओ बनेंगे किसी दिन। अब वो इतना सपना दिखाते हैं कि हमें लगा था कि हम ही सीईओ बनेंगे। चंदा कोचर का अभी उम्र है, जब चंदा कोचर जाएगी तब मैं ही आऊंगा फिर इसका सीईओ बन के। तो लग गया था। और बैंकिंग में तो हम ये सब क्लरिकल काम करना पसंद नहीं है। गवर्नमेंट बैंक में आपको सब सारा मिल जाता है स्कोप, प्राइवेट बैंक में तो मिलता नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट बैंक में भी अगर आप डायरेक्ट स्केल 2 स्केल 3 ज्वाइन करते हो, टेलर वाला काम आप देखते कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा। मतलब आपने देखा होगा, मतलब यू डू डिडंट हैव बोदर। छोटा ब्रांच है तो आपको तो सब करना होता है, बट बड़े ब्रांच में आप उतना मतलब इन्वॉल्व भी नहीं होंगे तो चलेगा। तो 500 का नोट लेके चले आते थे। मैं वो भाई फेक है कि सही, मैं बोलता है थोड़ी मुझे पता है। तो लोग बोलते थे कि नया नया बैंक मैनेजर बना है ना, अभी पता नहीं है। ठीक है, हमारे तो वो अंकल जो हैं वो अभी रिटायर्ड होने वाले हैं, वो बड़े बैंकर हैं। वो तो अभी इसमें बैठते हैं ना, वो कैश में खुद बैठते हैं, वो डेली रोज नोट गिनते हैं, गड्डी गिनते हैं। उनको कौन बताए कि भाई ये सब क्लरिकल काम है, हम मैनेजर हैं। ठीक है, तो ये बहुत शर्म महसूस होता था। हमें थोड़ी पता है कि वो जो फेक नोट, ये नोट, वो नोट, हम थोड़ी नोट गिनते हैं। तो यही होता है, राइट। एक बढ़िया क्वेश्चन आया अमूल यादव से कि सर प्राइवेट बैंक के ऑडिटर लोग बहुत ज्यादा दिमाग वाले रहते हैं, पता कुछ नहीं लेकिन नियम सारे जग के बताएंगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज आपने बोला। प्राइवेट बैंक का ऑडिटर में मुझे बहुत लोग फोन करते हैं। मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो ये करते हैं कि सर ये ऑडिटर वो मांग रहा है, बहुत नाक में दम करके रखा है। और आप लोग कुछ ऑडिटर को बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है कि बाकी जो प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हमारा नॉलेज कम है, हमने तो बैंकिंग किया ही नहीं है, एलआई सेल्स किया है और थोड़ा बहुत कासा लाया है हमने जिंदगी में, या फिर रेमिटेंस में बैठे तो रेमिटेंस में लाए करते हैं, रेमिटेंस ही किया है। भाई आरबीआई का तो कुछ और नियम होगा, हम जो करते हैं थोड़ी वो सही है। क्योंकि अगर हम सही करते सुबह शाम रात दिन, वो मैनेजर हमें गाली नहीं देता। वो इसीलिए आपको गाली दे रहा है कि उसका बीबी, उसके बीबी ने उसको सुबह गाली देकर भेजा है। ठीक है, उसके बीबी के साथ उसका पटता नहीं है, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो आपको गाली दे रहा है। आपको लगता है कि आप कुछ जानते नहीं है, हालांकि वो नियम ही नहीं है। और ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर को खुद काम ना करना पड़े इसीलिए आपको वो गाली देता है। गेटिंग इट और नॉट? प्राइवेट बैंक में, राइट। मैंने तो मेरा मैं तो ऑडिटर को पूरा नाक में दम करके रखा था। पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑडिटर को मैं नाक में दम करके रखा था, मैंने ऑडिट क्लोज ही नहीं किया। क्योंकि पिछला वाला था, मुझे ऑडिट इसलिए करा रहे थे कि मुझे फंसाया जाए। और सबसे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी पूरे बैंक में 978 प्लस डिस्क्रिपेंसी निकले थे मेरे ब्रांच में जानबूझकर। और जब डिस्क्रिपेंसी निकला, मुझे हेड ऑफिस से फोन आया, फॉर फ्यू सेकंड प्लीज होल्ड ऑन, ये भी आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स काम आएंगे। रीजनल ऑफिस से फोन आया, क्या आप करते क्या हो, इतना सारा डिस्क्रिपेंसी, आप तो ऑडिटर के साथ बैठे भी नहीं हो लास्ट 3 दिन से, तो आप बैठ के कमाओ, उसको कम करो। मतलब आपका क्या होता है कि कहीं कहीं पे सिग्नेचर मिसिंग हो जाता है, तो आप वहीं पे जाके इमीडिएट साइन कर देते हो, तो एक डिस्क्रिपेंसी कम हो गया है। ठीक है, केवाईसी नहीं है सर, सर ये फाइल मुझे दे दीजिए, 10 मिनट में मैं इसका केवाईसी ले आता हूँ, अरे अरे जाओ जाओ केवाईसी ले आओ, तो वो डिस्क्रिपेंसी कम हो जाता है। कहाँ कहीं थोड़ा बहुत, मतलब अगर ऑडिटर को आपने अच्छा काजू नहीं खिलाया, ठीक है, अच्छा बादाम नहीं दिया, चाय कॉफी के लिए नहीं पूछा, रात को थोड़ा सा दारू वारू नहीं पिलाया, तो डिस्क्रिपेंसी बढ़ जाएगा। अगर यू डोंट हैव ए कोडियल रिलेशनशिप विद द ऑडिटर। ठीक है, मुझे फोन आया, मैंने सीधा बोला रीजनल मैनेजर को, ऑडिटर को सैलरी नहीं मिलता है क्या? अगर डिस्क्रिपेंसी कम हो सकता है तो उसने कम क्यों नहीं किया? मैं बैठूंगा तब जाके कम करेगा, मैं नहीं बैठने वाला उसके साथ। आप उसको बोल दीजिए जो उसको लिखना है वो लिख दीजिए, लिख दे। उसको तो सैलरी भी मिलता होगा ना, मैं उसको खिलाया पिलाया भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं छोड़ने के कगार पे था। उससे पहले भी मैं ऐसा ही करता था।
तो वाई शुड आई मतलब उसको क्यों मैं बिठाऊं, उसका कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ाऊं, बार बार चाय पिला के, दारू पिला के, चिकन मटन खिला के उसको क्यों दारू, उसका कोल बेचारे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ाऊं। ऑडिटर इसलिए बीमार पड़ जाते हैं, ये सब इतना खिलाते हैं उनको, राइट। तो मैंने किया नहीं, तो उसने इतना सारा डिस्क्रिपेंसी दे दिया। मैंने बोला कि भाई मेरे बोलने से कम कैसे हो सकता है, अगर कम हो सकता है उसको पहले कम कर देना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा, उसको सैलरी नहीं मिलता है क्या अपने काम करने का? अगर मिलता है तो भाई फिर हमसे क्यों वो ये सारे उम्मीद रखता है? तो हम उसने कम नहीं किया, बढ़ा दिया। आई डिड क्लोज, क्योंकि बहुत चीजें अननेसेसरी था जो क्लोज हो सकता था। अगर अननेसेसरी था भाई, आप क्लोज करिए। तो वो प्रीवियस 10 15 स्टाफ जिनका था, प्रीवियस फील्ड ऑफिसर्स, प्रीवियस जो काउंटर में बैठते थे, उनका सिग्नेचर मिसिंग, सब आके खुद साइन किए। मैंने नहीं किया, ओपन क्लोज क्लोज नहीं किया, क्योंकि अवेयरनेस मेरे पास था कि मैं नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। ये सब जो चीज गलत है वो गलत है। तो उसके लिए आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये भी, ये सारा नॉलेज आपको प्राइवेट बैंक में काम आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अवेयरनेस विल एनलाइटन यू, विल स्ट्रेंथन यू। आपको प्राइवेट बैंक में भी कोई फंसा नहीं सकता। ये नॉलेज आपको प्राइवेट बैंक में सर्वाइव करने के लिए भी एनआई एक्ट पढ़ना जरूरी है। द एंडोर्समेंट ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी, इट इज ट्रांसफर टू द एंडोर्सी द प्रॉपर्टी इन द बिल। ठीक है, डिलीवरी में जो प्रॉपर्टी ऑफ द बिल मतलब जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा था वो सारा कुछ उसको ट्रांसफर हो गया है।